السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. میں بہت سے لوگ اشر عظیم کو جو جانتے ہیں ڈیفینیٹلی بڑا آنیسٹ، تھورو جینٹل مین، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اشر عظیم جو ہیں انہوں نے کوئٹہ میں اپنی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے کالج ایروناٹیکل انجینئرنگ کو جوائن کیا، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ساتھ وابستہ رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، جو سول سروسز ہیں آپ اس میں آ گئے، اور پھر انہوں نے ایک کہانی لکھی اسی کے بارے میں. وہاں سے ان کو کہا گیا کہ تم تو بہت اچھے رائٹر ہو. پھر انہوں نے دھواں ڈرامہ لکھا، پورا پاکستان ان کو فالو کرتا ہے. اور پھر انہوں نے مالک فلم، کیونکہ اس سسٹم کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا تھا تعلیم کے اعتبار سے بھی، اور پھر جو ان کی بورڈ آف ریونیو میں بھی سروسز دیں، پاکستان کسٹم میں سروسز دیں، اور سی ایس ایس امتحان دینے کے بعد اعلیٰ عہدے تک بھی پہنچے، اعلیٰ ترین عہدے تک بھی پہنچے، جس میں اس سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ظاہر ہے کوئٹہ کا یہ علاقہ تھا، وڈیرے بھی اور جاگیردار بھی، اور وڈیرا سسٹم کو بھی دیکھا، تو میرا خیال ہے اسی نے ان کو مائل کیا فلم مالک بنانے میں، اور اس فلم مالک پہ انہوں نے بڑا لوز بھی کیا. کینیڈا آئے، میں اور کسی چیز کے بارے میں صرف اتنی بات کرتی ہوں جس کی میں وٹنس ہوں. آئی ہیو سین دس مین، جس کا مرتبہ بھی، پوزیشن بھی، ایوری تھنگ ہی ہیڈ، مگر اس انسان نے کینیڈا میں آ کے بھی ٹائرلیس کام کیا. آپ نے بڑے فخر کے ساتھ عزت اور ایمانداری کی کمائی کی یہاں پہ بھی، اس میں ٹرک چلانا بھی تھا، پھر درمیان میں دبئی چلے گئے. ماشاء اللہ ناؤ ہی از ڈوئنگ اندر تھنگ، وی ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. مگر کیونکہ پاکستان کا بچپن، جوانی، اور پھر اعلیٰ ترین جاب کے بہترین دن انہوں نے وہاں پہ گزارے، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہوتی کہ اگر پاکستان ان سے وہ تمام سروسز دے سکتا جو جتنے یہ ٹیلنٹڈ ہیں. اشر عظیم صاحب، ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اور وی ور نیور اپارٹ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ مجھ پہ احسان کیا. عارفہ جی، آپ یو آر ویری کائنڈ، اور آپ مجھے ناچیز کو شرمندہ کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اینڈ ویورز، میں اور عارفہ جی اب اس بار منڈے کے منڈے اس ٹائم پہ آپ کے پاس حاضر ہوا کریں گے فارملی، اور میں اپنی جو 2 بٹس میری ہوں گی وہ آپ کے گوشت گزار کروں گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی لائٹ وغیرہ میری اتنی مناسب نہیں ہے، بیکاز کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ یو آر گریٹ سر. آپ کا اپنا انٹروڈکشن از ہیویئر دین اینی تھنگ ایلس. No, thank you so much, but next time These are all temporary things but your own. میں نے کہا میرے جیسا انسان تو اپنا وزن بڑھانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، مگر آپ کے تو وزن ویسے ہی ماشاءاللہ ہے. I mean your personality, your achievements, that makes a huge difference. میرا سر پہلا آج ہم جو چلنا چاہتے ہیں، میں کبھی کبھی بڑا غم کرتی ہوں اس بات کا کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ جس کو ہم اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، سبجیکٹ کو چینج کرنے کے لیے دوسری کی طرف توجہ ڈال دیتے ہیں. جیسے انڈیا میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے جی پاکستان کی طرف توجہ کر کے وہ ایک مذہبی منافرت پیدا کرنی شروع کی، مگر ان کی دے آر لیڈرز آف دیئر کنٹری. پرائم منسٹر آف پاکستان، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ صدر مسلم لیگ نون، انہوں نے مبارکباد دی جناب نریندر مودی صاحب کو، اور میں کہتی ہوں دس از واٹ دا لیڈرشپ اینڈ پرابلی دیٹ از دا ریزن انڈیا ہیز گروئنگ اکانومی. بہت سے لوگوں کو میری بات بری لگے گی مگر سچ کڑوا ہوتا ہے. انہوں نے جب ان کو ایکس پہ مبارک بھی دی کہ وارم ویلکم بھی ان کو کیا اور سارا کچھ کہا، اور ان کا جو تیسرا ورڈ ہے کہ آپ کی عوام نے تیسری دفعہ آپ کو پرائم منسٹر کے لیے چن لیا، جس پہ مودی صاحب جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے لوگ ہمیشہ سے امن، سلامتی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں. ہم اپنی عوام کی فلاح و بہبود اور سلامتی کو آگے بڑھانا ہمیشہ ہماری ترجیح رہے گی. یہ سر اگر دیکھیں بڑا کمال کا بیان دیا. دس از واٹ دوز ہو ڈیلیور ٹو دیئر پیپل. ایبسولوٹلی رائٹ جی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حکومت کا کام یہی ہے کہ جی، اور تو حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو
क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, उनकी हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन. सो यही सब हुकूमत का काम है, और अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो देन इट्स पॉइंटलेस. सो दिस इज व्हाट अ गवर्नमेंट मस्ट डू. एंड अगर इंडिया की हुकूमत ने यकीनन, वी कैन डिफर विद देम ऑन सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हमसे तेजी से उसकी जीडीपी, उसकी हर चीज हमसे तेजी से बढ़ रही है. सो दे आर डूइंग समथिंग राइट, देयर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग राइट, एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम इन दिस. हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें भंबल भूसे में डाल के रखा हुआ है. सर, आज मैं आपसे जो एक बात ख़ास तौर पे मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एक दूसरे के कंधे पे सवारी करते रहे थ्रू आउट द टाइम. मैं 76 ईयर्स से कि हम जब ग्लाइड करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बैठ के, पॉलिटिशियन उन पे बैठ के ग्लाइड कर रहे हैं, ये उन पे, यानी एक दूसरे का, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, अवाम पिस रही है. आज पाकिस्तान का हारने को भी आप इसी में बल्कि कवर कर लें. ये सर, पाकिस्तान में फायर वॉल्स लगाने के बाद, यानी आज की दुनिया में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बजाय इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, कि रादर देन वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बीच में, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आपके सेनेटर्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन एजेंडा. मुल्क की सिक्योरिटी गई भट्टे में. लकी मरवत का वाक़या हो जाता है. आज वो आपके सेनेटर साहब जो हैं 3 in 1 मैं उनको कहा करती होती हूँ. आज क्रिकेट का भी आपने अजीब सा नक्शा दिखा दिया. मैं ये 3-4 सवाल आपसे इकट्ठे कर रही हूँ. इसी में एक सवाल मेरा ये फायर वॉल का आ रहा है कि अब इस ग्लोबल विलेज में से आप अपनी कौम को वैसे ही स्टोन एज पे लेके जाना चाहते हैं. हालांकि जो अक्लमंद माँ बाप हैं, जो मतलब वो हर तरह की तालीम अपने बच्चों को भी देते हैं, तो क्या फरमाएंगे कि फायर वॉल लगा के आप बाहर की दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता करना चाहते हैं? मुल्क की सिक्योरिटी का बुरा हाल है. आप मुझे पता है आप कहेंगे आरफा आपने क्या कर दिया. ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी है कि ये मेरे सारे सवाल इकट्ठे ही आपके पास आ गए हैं. आरफा जी, आई बिलीव कि वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, और गवर्नमेंट्स और सारी दुनिया एक एस्टैब्लिश्ड मीडिया के थ्रू जी रही थी. और आप ये, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप इसराइल पैलेस्टाइन इशू पर देखेंगी आजकल, और जिसकी वजह से सारी दुनिया बड़ी डिस्टर्ब्ड है. हुआ ये है कि आपने एस्टैब्लिश्ड मीडिया चैनल्स को कंट्रोल किया हुआ था. गवर्नमेंट्स के लिए अपनी तस्वीर सामने रखना अवाम के आसान काम था. इतने में सोशल मीडिया आया, और सोशल मीडिया के आने पे ये जो हमने तमाम फसाद खड़ा किया हुआ था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, इंडिविजुअल राइट्स का, ये सब जिसको गवर्नमेंट अपने बड़े मजे से कंट्रोल कर लेती थी अपनी तस्वीर दिखा के, एक वो अचानक जब हर एक के हाथ में कैमरा आया, हर एक के हाथ में ट्विटर आया, हर एक के हाथ में टिकटॉक आया, तो आप देख रही हैं कि वो जो एक दुनिया के जो कंट्रोलर्स थे वो बड़े डिस्टर्ब्ड हुए हैं, क्योंकि उनकी कहानी अब तक, और ये इंटरनेशनली, मैं पाकिस्तान की सूरत हाल को डाइल्यूट नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले दिनों, और अगर आप चाहेंगी तो मैं अपना स्क्रीन भी आपको शेयर करके दिखाऊंगा, पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि जी रशिया में, जिसको हम कहते हैं कि जी वहां पे बड़ा स्टेट का कंट्रोल है और कम्युनिस्ट सोसाइटी है, तो वहां पर सोशल मीडिया पे अपना आपको एक्सप्रेस करने पे 411 लोग गिरफ्तार हुए. और यूके, जिसमें हम कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वहां पर 3300 लोग गिरफ्तार हुए. वाओ. ठीक है जी. और आप, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ. ये सब रिपोर्टेड है, और ये टाइम्स, ठीक सर आपने रिपोर्ट किया, और सब इस है. सो ये क्रेडिबल बात है. सो अब आप ये देखिए,
आप ये देखिए कि पैलेस्टीनियंस के साथ सपोर्ट करने पर अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक ये इंटरनेशनल एक हवा चली है कि गवर्नमेंट्स बौखलाई हुई हैं। और आज फ्रांस का भी वाकया हो गया कि बुखलाहट में मैख्वा ने डाइल्यूट कर दी अपनी पार्लियामेंट फ्रांस के। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ फ्रांस में। वो जी उन्होंने, उनको भी डर है कि भाई अब मेरे आखिरी दिन आ गए। बहरहाल आप कैरी ऑन करें। यानी आपने बुखलाहट का जिक्र किया, फ्रांस का भी कल परसों का ये एडिशन है, तो मैंने कहा मैं वो भी करती चलूं। एनीवेज यू कैरी ऑन प्लीज। जी, एक जो कंट्रोल था ना, डेमोक्रेसी शायद इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस अब दुनिया पर आ रही है। अब आप सिर्फ अपनी बात करके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग तस्वीरें खींच के उनके वीडियोस उठा के एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है। फॉर समबडी लाइक मी, आई लुक एट इट एज अ ग्रेट पॉजिटिविटी। आपको याद होगा कि इलॉन मस्क के से बड़ा खप डली थी कि जी आप, इसराइल ने शुरू में, या उसने गुस्सा था कि इंटरनेट क्यों दे दिया। हाँ जी, तो उसने कहा जी मैं तो इंटरनेट दूंगा। अब पाकिस्तान भी वही कर रहे हैं आप कि जी आप आवाजों को हम किसी तरह रोक सकें। देखिए, सर्टेन एक्सटेंट तक आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को शायद उस पे हमें कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल शायद मादर पिदर आजाद भी नहीं हो सकता। ये बात तब खुल के सामने आई थी, आपको याद होगा खान साहब भी के दौर में, जब ट्रूडो ने भी यहाँ पे ये बात की थी कि जी आप अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, जब आपको याद है इस्लामोफोबिया की बिल्कुल बात, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों की रिलीजियस सेंसिटिविटीज को जानबूझ के अगर आग दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, जिससे आप सोसाइटी में एक गंद, एक खप क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसे रेगुलेट करेगी। हालांकि वेस्ट का इससे पहले हमेशा ये रहा है कि जी हमारा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो जाहिर है जब उनके हाथ से वो मीडिया पे कंट्रोल निकलना शुरू हुआ, तो अब उन्होंने कहा कि ओके नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और आप ये देखिए, आई मीन यूएस में कितने लॉज पास हुए हैं। कनाडा ने अभी लॉ पास किया है विच इज, आपने अभी देखा, इट्स क्वाइट रिडिकुलस कि जी हम किन किन चीजों पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आपको पकड़। सर टिकटॉक को बंद करने की इसीलिए कोशिश है ना कि इसराइल का दबाव है कि गजा वुड की खबर बाहर ही नहीं आनी थी। दिस इज टिकटॉक एंड दिस इज द इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय एलॉन मस्क, जिसकी वजह से ये बंदे तक वो खबर चली गई। तो दे वांट टू ब्लॉक टिकटॉक इन नॉर्थ अमेरिका। सो स्टेट्स जो हैं जी आज के दौर में ये एक ज़ाहिर है एक रिएक्शन कर रही हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल्स लूजन अप हो रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कर रहा है, और पाकिस्तान ने पहले ट्विटर को बंद करते रहे, अब एक फायरवॉल लगा रहे हैं। देखिए, इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी, लोग फ्यूचर के बारे में बड़ा शायद डिसअपॉइंटेड है। आई थिंक कि फ्यूचर एक बहुत अच्छा आ रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि एआई को इंसान के कंट्रोल से निकल जाएगी, तो भाई इंसान के कंट्रोल नहीं तो दुनिया को आज तक यहाँ खड़ा किया हुआ। मतलब मैं जब, अगर आप मुझे इख्तियार दे देंगे, आशिर साहब को इख्तियार कुल दे देंगे, तो मैं जाहिर है अपने रंग को कुछ फेवर करूंगा, मैं अपने लोगों को कुछ फेवर करूंगा, मैं कोई मज़ाहिब, कोई, मैं जहां से आ रहा हूँ ना, मेरे अपने बायसेस में साथ लेके आऊंगा। I actually feel that we are approaching a very wonderful world where people, आप इतना आसान नहीं उनकी बात को सेंसर करना। And I would be looking forward to a world जिसमें एक ऐसी इंटेलिजेंट एंटिटी दुनिया को चला रही हो जो कि किसी के कंट्रोल में ना हो। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी इंटेलिजेंट शख्स को बायस भी नहीं देखा, क्रूअल भी नहीं देखा, खौफजदा भी नहीं देखा। तो वो इंटेलिजेंट शख्स फोकस है अपनी काम में। पॉलिटिशियंस दे प्ले विद द माइंड्स। हाँ जी।
So आपका actually we are living in very interesting times. देखिए capitalism as a system, power as a unipolar world कि जी यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कह दिया वो कह दिया और वही होगा दुनिया में, हम उस यूनिपोलर वर्ल्ड से भी शायद अब एक दूसरी तरफ Going towards the चलना शुरू bipolar, हुए हैं. yeah. और 5-10 साल में it will not be a unipolar world. जो डॉलर का कंट्रोल ओवरऑल, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सर. रशिया की करेंसी बहुत अच्छी कीमत पे चली गई है. इट वाज वेरी डाउन. चेक इट. जी सर. हेलो जी सर, कैरी ऑन. हाँ जी, तो बात चली थी कि जी पाकिस्तान में ये जो भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी उसी, असल में जब लहर एक चल रही होती है ना दुनिया में, तो वो लहर हम सब पे थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है. पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट यकीनन है. पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट, इट्स अ मिस्टेक. यू कैंट ऐसे नहीं चलेगा. तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा. आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अपनी सर्विसेज बेहतर करनी पड़ेंगी, और ये जो इनइक्वालिटी के सिस्टम्स हैं ये नहीं चलेंगे. सही सर, बहुत शुक्रिया. इनइक्वालिटी के सिस्टम नहीं चलेंगे पूरी दुनिया में. ये दिस इज़ 2024 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. बहुत सारे ममालिक में इलेक्शन है अभी. और इंग्लैंड का भी इलेक्शन आ गया सर पे. इंडिया का ख़त्म हुआ बड़ा इलेक्शन. अभी इंग्लैंड का इलेक्शन है. और ये जो प्रेसिडेंट मैक्वा हैं उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट को डाइल्यूट कर दिया है, मतलब असम्बली को तोड़ दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि अब दुनिया दाईं बाजू की हुकूमत के अंदर चल जाएगी. वल्लाह आलम बिस्सवाब. सर फायर वॉल नंबर 1 मुझे लगता है कि अच्छा आपने कहा कि दुनिया का सिस्टम ही अब वो पाकिस्तान में भी लेके, कि जो दिखाना है वो दिखाना, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना. बॉर्डर्स, सॉरी, ये जो हमारे जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स जो हैं उस पे बड़ी शुनीद है. और ज़ाहिर है किसी जर्नलिस्ट के हाथ में जब खबर जाएगी तो वो दुनिया में जंगल की आग की मानिंद फैलेगी. पाकिस्तान के जर्नलिस्ट्स के बारे में जो कुछ कहा गया है कि ऑलवेज अंडर प्रेशर. ज़ियाउल हक के दौर में भी उनको दबाने की कोशिश की, सेंसर सिस्टम लगा. उसके बाद फिर अगली हुकूमतें आई. मुशर्रफ दौर में भी ये हुआ. इमरान खान साहब के दौर में भी यही सूरत हाल थी. हामिद मीर साहब के बारे में बात कर लें. एक और थे, मेरा ख्याल सतूर था उनका नाम, उनका जिक्र कर लें. अब जो ये गवर्नमेंट है, अफसार आलम, एग्जैक्टली, अबसार आलम साहब ने भी ठीक ठाक सख्ती झीली. अब भी हालात अब भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं. आप देखिएगा, आप तो बल्कि सिविल सर्विसेज में रहे भी हैं, कि अरशद शरीफ की माँ और बीवी के पास ये भी इख्तियार नहीं था कि वो अपने बच्चे के मौत की FIR दर्ज कर सकें. तो अब की गवर्नमेंट भी कोई कसर तो नहीं छोड़ रही. कसूर किसका, जर्नलिस्ट का या गवर्नमेंट का? देखिए, इशू ये है कि हमें पर्सपेक्टिव को फिर देखना पड़ेगा. मैंने कहा ना कि अगर आप किसी के इंसान को कंट्रोल देंगे या किसी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो वो अपने बायसेस अपने साथ लेके आएगा. अनफॉर्चुनेटली मेरे भी वो बायसेस हैं, और मैं अपने बायसेस, शायद मेरे व्यूअर को मेरे बायसेस का पता होना चाहिए, और मैं सबसे पहले आपसे अपने बायसेस, आपसे भी और अपने व्यूअर से भी गोशगुजार करूं. देखिए, मेरा बायस किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी नहीं रहा. मेरा बायस फौज के सियासत में दखल अंदाजी के बिल्कुल खिलाफ है. लेकिन मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं. मेरी अपनी फौज, मेरे अपने भाई हैं, लेकिन वो सियासत में दखल ना दें. लेकिन एक चीज पे मेरा बायस बड़ा स्ट्रांग है. मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुन सकता, करता ना सुनता हूं. और मेरा एक वो बायस रहता है कि मैं हर खबर को, और आज की दुनिया में स्पेशली, एक पर्टिकुलर तनाजुर में यकीनन देखता हूं कि जी ये क्या, ये पाकिस्तान, देखिए, वी आर अ कंट्री जो कि अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर्स है आजकल. इट इज द ओनली कंट्री, इराक के साथ बहुत कुछ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ. बहुत से लोग थे जो इराक के अगेंस्ट बहुत सी बातें करते थे. उसमें एक्सपर्ट्स भी थे इराकी.
کیا آج کا عراق بہتر ہے اس عراق سے جو صدام حسین کا تھا؟ کہ آج کا لیبیا بہتر ہے اس لیبیا سے؟ سو پاکستان یقیناً اٹس اے ٹیربل ملٹری, اٹس اے ٹیربل گورنمنٹ, بٹ we must internally work to fix our problems, and externally جہاں ہمیں feeling ہو کہ جی ہمیں derail کرنے کی, it is the only nuclear power in the Islamic world. So اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو آپ کے اگینسٹ, وہ پاکستان کے اگینسٹ لوگ کام نہیں کر رہے اور یہ میرے ذہن کا فطور ہے, تو ایسا نہیں. So this mean پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, this is what میں I understood, میں کلیئرٹی چاہتی ہوں. تو ڈیفیم پاکستان they're the people working. نہیں, یہ نہیں ہے میرا. لیکن آر ایس ایف کی جو رپورٹ ہے, ہم بہت سی دفعہ شاید پاپولیرٹی کے لیے, ہم بہت سی دفعہ شاید جذبات میں بہہ کے, ہمیں جو لگتا ہے نا کہ یہ پاپولر ہوگا, ہمیں وہ منی ٹاکس والی بات ہے, لوگوں کی توجہ لینے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے ہم غلط سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. سو ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کیجیے گا, آر ایس ایف کی رپورٹ میں سم ہاؤ گرافکس آپ سے شیئر پتہ نہیں کروں یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈر. ہاں جی, آر ایس ایف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی یہ میں نے جو اپنا ایک کیا ہے جنرل مانیٹر, میں کیسے آپ سے شیئر کروں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہے. آپ کیمرے کو موڑ لیں اس طرف, اگر چاہیں تو آپ کیمرے کرو. چلے وہ میں ہم فیوچر میں آئندہ سے جی سر آپ زبانی شیئر کر لیں. میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں, آپ آر ایس ایف کی سائٹ پہ خود ہی چلے جائیے. ہاں ہاں, انہوں نے ایک نقشہ دیا ہوا ہے دنیا کا, جس میں انہوں نے پاکستان کو, عامر کین یو ڈو اٹ اکارڈنگلی. جی سوری, میں نے عامر کو کہا, عامر میرا خیال ہے اکارڈنگلی لے آئیں گے وہ اسکرین پہ, آپ بتائیے. ہاں جی, آپ دیکھیے کہ 167 نمبر پہ پاکستان کو رکھا ہوا ہے, اور جب آپ پاکستان کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنوری 2024 میں ابھی تک وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں 2 جرنلسٹ ڈسپیئر ہوئے ہیں اور 1 جرنلسٹ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے جی, اور پاکستان کا رینک اس نے 167 نمبر پہ رکھا ہوا, اور لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں جرنلسٹ کے خلاف سیویئر پرابلمز ہیں. اور اس نے جو اپنا نقشہ بنایا ہوا, وہ ایک کلرز دیے ہیں نا, ڈارکر کلرز ان کنٹریز کو ہیں جن میں بہت مسائل ہیں. ٹھیک ہے جی, جرنلسٹ کے خلاف. آپ اتفاق سے ذرا اسرائیل پہ چلی جائیے, 108 جرنلسٹ مرے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آر ایس ایف نے اس کو رینک 137 دیا ہے, یعنی وہاں پہ جرنلزم پہ کم مسائل ہیں اور پاکستان میں جرنلزم پہ زیادہ مسائل ہیں. کیا بات ہے سر, آپ خود ہی دیکھ لیجئے, ابھی دیکھیے رپورٹ ہے سامنے. عامر کین یو ٹیک اٹ آؤٹ. ہاں جی جی سر, آپ کیری آن کریں. ہم صرف ایسے ادارے, اچھا پھر آپ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ, اب آپ دیکھیں ایک سی پی جے بھی ایک ادارہ ہے دنیا میں جو کہ جرنلسٹ ہی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. یہ اب آپ دیکھ رہی ہیں نا, اس میں آپ دیکھیے پاکستان کا کیا رینک ہے اور کلر ہے, اور اسرائیل کا کیا رینک اور کلر ہے. پاکستان کا کلر بالکل جی دکھا دیا, 167 پہ جاؤ. ٹھیک ہے جی, اب ذرا چلیے آ جائیے, یہ ریڈ ہوا ہے نا, اب ذرا وہ کونے میں جائیے اسرائیل پہ, اسرائیل کے اوپر اوپر. ہاں یہ مڈل ایسٹ میں, ہاں جی, نہیں رائٹ پہ تھوڑا سا اور نیچے, وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے ہمیں. ہاں جی, ذرا رینک دیکھیے گا ان کا. ہاں ٹرکی ہے نا, یہ تو ٹرکی ہے نا, گرین والا. ٹرکی سے نیچے تھا میرے بھائی, ٹرکی سے نیچے تھا یہ. ہاں اب جارڈن کے بالکل سائڈ پہ ہلکا سا, یہ رینک دیکھ رہے ہیں ان کا 101 تھا جی, آپ نے دیکھا. اسرائیل 101واں نمبر ہے, اور ٹوٹل کتنے مرے ہیں, 101واں نمبر ہے. اور جی سر, ویری سیڈ جی. اور پاکستان کا نمبر کتنا ہے, 152. ٹھیک ہے جی, اب آپ مجھے یہ بتائیے, پاکستان میں 1 جرنلسٹ مرے, میں جسٹیفائی نہیں کرتا, قطعاً نہیں کرتا, 2 لوگ غائب ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن ایک میں ایسے ادارے کی رپورٹ
को क्यों मानूं जो कि जहां पे 108 जर्नलिस्ट मरे, टारगेट करके फौज ने मारे और मानती है, और बेहतरीन जर्नलिस्ट मरे। बेहतर है तो मैं इसकी रिपोर्ट को इतने ज्यादा सीने से कैसे लगा लूं, आप मुझे बताइए। ठीक सर, ठीक है, ठीक सर, बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छे। और बताएं सर। सो मेरी गुजारिश ये है कि हमें यकीनन चीजों को देखने की जरूरत है। हम यकीनन बहुत पीछे हैं, हम बहुत सी चीजों में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सादगी में, अपने जज्बात में बह के, हमें ऐसी चीजों का स्पोक्समैन बनना नहीं चाहिए जो कि डिलिबरेटली, आप देखेंगे कि आप इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा। आपके तमाम व्यूअर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को और इस नक्शे को जरा जरूर गौर से देखिएगा, और किन किन ममालिक को बड़ा अच्छा रैंक दिया गया है। आप देखें, यूरोप, यूके तो बिल्कुल शहजादे हैं ना जी, ग्रीन कलर हुआ है, और मैंने आपको बताया, और रशिया नहीं है। और अभी आप जाके स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए कि यूके में 3300 लोग ट्वीट करने पे गिरफ्तार हुए और रूस में 411। तो आप मुझे मैं इस रिपोर्ट को देखता रहा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ठीक है, आप पाकिस्तान को बुरा कह लो, लेकिन ये बाकी दुनिया सर, इसको ये भी कहा जाता है ना कि दूसरों की बीवी सारों की भाभी होती है। हालांकि हमारे यहाँ तो भाभी माँ की जगह पे होती है, मगर इस जगह को वो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान नहीं, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। मैं तो इसको इस एंगल से I definitely, Arfa ji, I do not justify disappearance of anybody. जुबान बंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए। हम एक जमहूर के दौर में रहते हैं, हमें अवाम की सुननी है, हमें अपनी सिस्टम्स बेहतर करने हैं, लेकिन हम एक ऐसे दौर में भी रहते हैं जहां पे हमारे बहुत दुश्मन हैं, और हमें उस पे भी होशियार तो रहना है कि जी हम किसी के हाथों में खेल तो नहीं रहे, अपने उसी टहनी को काट तो नहीं रहे जिस पे हम बैठे हुए हैं। अशर अजीम, आज आपने बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरा मुल्क बहुत प्यारा है, मेरी ऑनेस्ट टू गॉड मुझे गम होता है। मैं आपसे क्विक 1 मिनट में मुझे इसका जवाब चाहिए सर, कैसे लोगों को समझाया जाए कि ज़ुबान हमारी बहुत गंदी हो गई है। हालांकि मैं आपसे एक मॉरल वैल्यू लिया करूँगी हर प्रोग्राम में, और आपका कहा यकीनन असर करता है। तो बस टाइम की किसी से मुलाकात होती थी ना, तो उसकी बातचीत से उसके ख़ानदान का पता लगता था, और एक बच्चे की तरबियत का अंदाज़ा होता है किस माँ की कोख में ये बच्चा पला, और फिर इसकी दोस्ती क्या इदारों में किन में रहा। अब लोग गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा अपने बेटे को भी समझाती होती हूँ कि जानवर भी अपनी गलत नीड्स के लिए ना तन्हाई में चले जाया करते होते हैं। इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आप किस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हो? तो आप मुझे ये बताइएगा कि दोस्ती, कंपनी, आजकल मुझे लोगों की ज़ुबान में बड़ी गिरावट महसूस होने लग गई है। व्हाट इज़ द रीज़न एंड हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड? हाउ कैन पीपल हेल्प देमसेल्व्स? It's a complicated question. यकीनन we've seen it growing up. हमारा मुआशरा बड़े अदब आदाब का हुआ करता था। हम और आपको अपनी बात कहने के लिए बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात ज्यादा इफेक्टिवली कह सकते हैं, बड़े आसान से अल्फाज में भी। लेकिन somehow हमने मुआशरे में ये सीख लिया है कि शायद चीखने से ही मेरी आवाज़ सुनाई देगी। हाँ जी, और मैं उसमें ब्लेम करता हूँ हमारी हुकूमतों को, और ख़ास तौर पे फ़ौज के स्ट्रक्चर को। देखिए, जो फौजी वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो एक लाइन से ही बना लेता है, और वो समझता है कि जो भी इस लाइन पे बात कर रहा है वो मुझ पे हमला कर रहा है, और मैंने इसको मार देना है या फोर्स इस्तेमाल करके इसको रोकना। जो सोचने वाले लोगों का जहन होता है, नॉन फौजी, वो कहते हैं अच्छा जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूंगा, और फिर हम किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। या मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा या आप मुझसे एग्री कर जाएंगे, या हम नहीं एग्री करेंगे एंड we'll learn to disagree with each other and move on। लेकिन जब आप
मिलिट्री और मुलाइज्म को, आई एम सॉरी, जब आप ज्वाइन करते हैं ना जी, जो कि हमने किया है पाकिस्तान में डेलिबरेटली अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए, तो फिर आपको एक अथॉरिटी का ऐसा सिंड्रोम आता है कि कोई शख्स उस डंडा का जोर सबसे बड़ा जोर है, जो हमने कह दिया ये ठीक है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती, और जो इस पे कुछ बोलेगा हम उसको जान से मार देंगे। तो जान से मारना, जो लोग जान से मारने पे तैयार हों, वो गाली गलौच देना तो कोई बड़ी छोटी सी बात है ना सर जी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन की, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप देखिएगा कि मज़हब का इस्तेमाल टू मैनिपुलेट, तो दैट जी इज़ रॉन्ग। जो कि ज़ियाउल हक साहब का अगर याद कर लें, वो हर बात रिलीजन से शुरू करते थे, रिलीजन पे ख़त्म कर देते थे। आप उसके बाद अभी भी आप अगर आप देख लें तो रिलीजन से, हालांकि रिलीजन डजंट टीच रॉन्ग, मेरा ख्याल है एवरी रिलीजन जो है वो एहतराम करना सिखाता है, और इस्लाम में तो आप अपनी रोटी नहीं खा सकते जब तक कि साथ वाले बंदे के पास हमसाये को रोटी ना दी जाए, मगर ये जो इकट्ठा करना इसको तो अलाउ ही नहीं करता। आशिर अजीम, आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मुझसे कोई गलती नहीं होगी, तो नेक्स्ट मंडे को विल लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। आई जस्ट नीड योर एनालिसिस एंड वन एडवाइस ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। आशिर अजीम साहब से मैंने आपकी बातचीत कराई।